आज हमने शुरू करनी है ऑप्टिक्स, ठीक है। सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है। हो सकता है किसी किसी एसएलओडा में ये लास्ट में भी दिया हुआ है, और नहीं तो सेकेंड बुक का फर्स्ट टॉपिक हमारा ऑप्टिक्स ही है। ऑप्टिक कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, वन इज़ रे ऑप्टिक्स एंड अदर इज़ वेव ऑप्टिक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स इससे नेक्स्ट सेक्शन है। सो बिफोर गोइंग टू द स्टार्ट विद द optics, let us revise few properties related with it we have learned in class 10th. That is reflection of light. When a part of incident ray which is turned back into the first medium, this phenomenon is called as reflection. यानी अगर ray of light one medium से दूसरे medium में travel कर रही है, ये मेरी interface हो गई, इस phase पे ये normal हो गई, this is my incident ray. If it moves from one medium to another medium या medium 2, then a part of it which is reflected in the same medium, this is called as the reflection of light. When the incident ray incident on this reflecting surface and part of it moves towards the second medium, and depending upon the density of the two medium, the ray bend towards the normal or अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। इसकी बेंडिंग इधर की तरफ हो सकती है टूवर्ड्स, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दोनों ही चीज़ें ऑब्जर्व हो सकती हैं। सेम में नहीं होंगी। अगर हमारी वेव रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है, देन बेंडिंग इज टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, देन बेंडिंग इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल. It means when a ray of light is incident on a surface, on a refracting surface or any interface between the two mediums, then part of light goes to the second medium depending upon its density. Either it bent towards the normal or bent away from the normal. This phenomenon is called as the refraction of the light, right? Now the laws of reflection of light. Laws of reflection क्या कहता है? Angle of incidence is equals to the angle of reflection. Diagrammatically ये मेरी reflecting surface है. This line is normal to it. This is my incident ray. ये ray गलत draw हुई है. This is my incident ray. एरो से इसे शो भी कर देते हैं. Incident ray normal के साथ जो एंगल बनाएगी, it is called as angle of incidence. एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, इट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तीनों रेज, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, all these three rays lie in the same plane. This is the second point of the law of reflection of the light. Similarly, we have laws in case of refraction also, but today we are dealing with the reflection of the light. Now the laws of reflections are valid both in case of plane and the curved reflecting surfaces. Plane surface and curved reflecting surfaces के लिए it is these laws, और जो reflection के दोनों laws, angle I is equals to angle R and 3 rays lie in the same plane, is applicable both for plane as well as for the curved reflecting surfaces, right? Now spherical mirror. Let us do some definitions which we are using in this chapter is spherical mirror. Repeatedly ये word अब कई सारे articles में repeat होएगा. It is a spherical mirror is a reflecting surface which forms part of a hollow sphere. कैसे? जैसे अगर मेरे पास ये एक hollow sphere है, अब इस hollow sphere में मैंने इसका कोई छोटा सा हिस्सा पॉलिश करा और इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है? तो दिस इज द स्फेरिकल, ये वाला जो पार्ट है कर्व्ड वाला, ये वाला हॉलो स्फीयर का वो हिस्सा जो हमने रिफ्लेक्टिंग बना दिया, इट इज़ कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर. इट इज़ ऑफ 2 टाइप, कनकेव एंड कन्वेक्स, डिपेंडिंग कि आपने इनर साइड पॉलिश करी है या आउटर साइड पॉलिश करी है. अगर आउटर साइड पॉलिश है देन इट इज़ कॉल्ड एज कनकेव मिरर, और अगर इन साइड से पॉलिश करा है मीन्स ऐसे और ऐसे, अगर आपने इन साइड से पॉलिश करा है, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड एज कन्वेक्स, और अगर बेटे आपने आउटसाइड से पॉलिश करा है देन इट इज़ कॉल्ड एज कनकेव. अ स्फेरिकल मिरर इन विच द आउटर सरफेस ऑफ द मिरर इज पॉलिश्ड एंड
the reflection of the light takes place through the inner hollow surface. It is called as concave mirror. And when a spherical mirror in which the inner surface is polished and the reflection of the light takes place from the outer part of the hollow surface, then it is called as convex mirror. So spherical mirror is of two type, and these two are the part of this original hollow sphere, out of which ये डिपेंड करेगा कि आपने उसके इनर या आउटर सरफेस को पॉलिश करा है, उसके हिसाब से वी हैव टू स्फेरिकल मिरर्स, वन इज कनकेव एंड अदर इज कन्वेक्स. दिस इज़ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द स्फेरिकल, जो होलो स्फीयर आपने लिया था उसका पार्ट हो गया, दैट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. If its inner surface is polished, it is convex, and if its outer surface is polished, it is concave mirror. अब जो definitions हमने पढ़ी हैं कौन कौन सी? पोल, it is a middle point P of the spherical mirror. ये जो spherical mirror है इसका ये हो गया P, इसके लिए ये हो गया P, और इस केस में ये हो गया P. That is called as pole, and it is represented by in all the ray diagrams by capital letter P. Center of curvature. It is the center of the sphere which the mirror forms a part. यानी उस sphere का center, ये जो sphere था जिसका ये एक part है, अगर देखा जाए और इसे complete करोगे तो ये पूरा सर्कल बनेगा. जिस sphere का ये curved वाला हिस्सा part है उसका जो center है, it is called as C, that is the center of curvature. Radius of curvature, C center के पोल से डिस्टेंस, ये this is called as radius of curvature, capital R. Principal axis, a line passing through pole and center of curvature, is said to be the principal axis. Linear aperture, it is the diameter of AB of the circular boundary of the spherical mirror. इधर देखो ध्यान से डायग्राम में, ये A और ये B. दिस इज़ इन, ये जो सर्कुलर पार्ट लिया है इनके एंड पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को, इसको A लिख लो, इसको B लिख लो, इसके डिस्टेंस को आप बोलते हो लीनियर अपर्चर. एंगुलर अपर्चर, इट इज़ द एंगल ACB सबटेंडेड बाय द बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर एट इट्स सेंटर ऑफ द कर्वेचर. दैट इज़, अगर आप इसको इससे और इससे ज्वाइन कर दो, दिस एंगल इज सेड टू बी द एंगुलर अपर्चर. Principal focus, when a ray of light is parallel to the principal axis, after reflection it will converge or diverge at a point on the principal axis. It is called as principal focus, depending upon the type of mirror we are using. In case of concave mirror it will converge, and in case of convex mirror it will diverge, and when it converge real focus will be formed. That means the rays are actually meeting at point F. These rays are parallel to the principal axis. After reflection it will meet the principal axis at a point which is said to be the focus. As the rays are actually meeting, this focus is called as real focus. ठीक है. And when here in case the rays are parallel to the principal axis, ray diagram में ये arrow दिखाने must है. These two rays diverge and they appears to meet at point F on the principal axis, and this point F is said to be the virtual focus in case of convex mirror. Focal length, the distance of the focus from the pole, ये आपका बेटे पोल हो गया. फोकल, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, यानी ये वाला डिस्टेंस, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f. द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज सेड टू बी द फोकल लेंथ, राइट. नाउ जो 7 डेफिनेशंस अभी आपने पढ़ी, लेट इज रिवाइज दोज डेफिनेशन थ्रू दिस डायग्राम. मैंने ये वाला स्फेरिकल मिरर लिया, इसका सेंटर पोल A और B, उसके एंड पॉइंट्स B के बीच का डिस्टेंस इज लीनियर अपर्चर. C, जिस सर्कल का वो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द पोल
or from point A or B, it is said to be the radius of curvature. Angle ACB, ये वाला angle, this is said to be the angular aperture, and the line joining point P and C is said to be the principal axis, and the rays, incident ray, which are coming parallel to the principal axis, after reflection they meet a point on the principal axis. It is said to be the principal focus. It may be of two types depending upon the type of mirror we are taking, whether it is convex or it is concave. It may be real focus or virtual focus. Now, the next important point of optic is the sign convention. First, all the distances are measured from pole of the mirror. सारे distance आपने P से ही लेने हैं, ठीक है. अगर मुझे P to C distance लेना है तो आप CP नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? PC. All the distances are taken from pole. All the distances measured in the direction of the incident ray. You can write light or word ray are taken to be positive. All the distances measured in opposite direction of the incident ray are taken to be as negative. एक कोई भी ऐसी डायग्राम बना लेते हैं. लेट ये मेरा स्फेरिकल मिरर है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, इसकी डायरेक्शन हमेशा ही लेफ़्ट टू राइट होती है. सो दिस इज़ पोल. अगर डिस्टेंस ये है, ए पॉइंट का डिस्टेंस लेना है इधर, और आप जा रहे हो इधर इंसिडेंट रे में, सो दिस डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव, और इधर वाले सारे डिस्टेंस क्या होंगे? पॉजिटिव. लेफ़्ट टू राइट वाले पॉजिटिव, राइट टू लेफ़्ट वाले नेगेटिव. और डिस्टेंस लेना आपने हमेशा कहाँ से? पी पॉइंट से. अब अगर मैंने ऑब्जेक्ट ये वाला कंसिडर करा है तो उसकी हाइट मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव. और जो डिस्टेंस या हाइट हम नीचे की तरफ लेंगे डाउनवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव. So these are the sign conventions we are opting during this chapter. Height measured upward and perpendicular to the principal axis are taken as positive, and the distance or the height which is measured downward and perpendicular to the principal axis are taken as negative. Note heading is all the ray diagrams are drawn with the incident ray of light which is always travel from left to right. This is a big note heading. Incident ray always move from left to right, and this is our convention. ऐसा नहीं है कि हम राइट टू लेफ्ट नहीं ले सकते, बट इन दिस चैप्टर वी आर टेकिंग लेफ्ट टू राइट, और इसलिए एक ही चीज़ याद रखेंगे. नाउ द फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर इज द रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर. क्लास 10th में आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है. एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2. उस रिलेशन को अब हम डिराइव करेंगे. वेदर इट इज़ द केस ऑफ कनकेव मिरर और ऑफ कन्वेक्स मिरर, दोनों के ही केस में डायग्रामेटिकली मैंने दोनों डायग्राम यहाँ पे लिखे हैं, और दोनों के ही केस में एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 रिलेशन इज ट्रू. नाउ कंसिडर अ रे ए बी विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ चाहे कनकेव चाहे वो कन्वेक्स, राइट. सबसे पहले मैंने कनकेव मिरर बनाया. कनकेव मिरर का डायग्राम ध्यान से देखो. ये ना मेरा स्फेरिकल मिरर, ए बी इज़ द इंसिडेंट रे. और एक चीज़ और याद रखनी है, द रे विच इज़ पासिंग थ्रू सी इज़ टेकन एज नॉर्मल. सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट को मिलाने वाली लाइन नॉर्मल होती है. ए बी इंसिडेंट रे, बी टू एफ, क्योंकि ये पैरेलल थी. ray parallel to the principal axis, after reflection it will pass through a point on the principal axis. It is called as real focus. तो reflection के बाद ये focus से जाएगी. और C center of curvature और point of incidence को join करने वाली line normal. A B incident, B F reflected, C B कौन सी हो गई? normal. नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल हो गया एंगल आर. दैट इज योर रिफ्लेक्शन एंगल. ठीक है. फोकस का डिस्टेंस पोल से इज फोकल लेंथ. सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस कैन बी रिटन एज P2F is small f, P2C is capital R. That is
radius of curvature. I am taking this angle which is formed at point C is alpha, right? Ray converges at point F in case of concave mirror. It is converging here, and in case of convex mirror, this ray AB is parallel to the principal axis and after reflection it goes through path this. और अगर मैं इसे पीछे की तरफ extend करूँ, it appears to be meet at point F, that is the virtual focus, and this point is the pole. ये P वर्चुअल फोकस, C नॉर्मल. ये भी हम पीछे की तरफ इसे जब खुद से इंक्रीज़ करते हैं तो वर्चुअल इमेजेस या वर्चुअल वर्ड यूज़ करते हैं. और पूरे रे डायग्राम्स में जहाँ पर मैं वर्चुअल बनाऊंगी वहाँ पे ये डॉटेड लाइन की हेल्प लूँगी. अगर सॉलिड लाइन है तो वो रियल है, अगर डॉटेड लाइन है तो वहाँ पे ये वर्चुअल है. सो इट इज़ अ वर्चुअल फोकस. C सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस केस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर वही है, नॉर्मल ही होएगा. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सी पॉइंट को अगर आपने मीट करा है तो वो इसकी नॉर्मल ही है. इसी लाइन को डॉटेड हमने पीछे की तरफ बढ़ाया है. इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल आई बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल आर, और सी पे हमने एंगल लिया है अल्फ़ा. कन्वेक्स में भी वही लिया है और बेटे कनकेव में भी वही लिया है, राइट. नाउ F be the focus, C be the center of curvature, CP अभी हमने देख लिया radius of curvature, BC normal. Now according to the law of reflection, angle I is equals to angle R. Now if you see in the diagram, as AB is parallel to PC, अगर AB और PC parallel हैं, look at here, AB is parallel to PC, right? इस केस में sides, अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, ठीक है, दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो एंगल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एंगल आई. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आई, राइट. अगर अल्फ़ा और आई इक्वल है तो किस प्रॉपर्टी से हुआ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ए बी सी पी पैरेलल, बी सी उनकी ट्रांसवर्सल. सो एंगल आई इज़ इक्वल्स टू एंगल अल्फ़ा. आई कैन राइट इट दिस. और आई और आर इक्वल हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से. सो अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू आर. और अगर अल्फ़ा और आर इक्वल हैं तो अगर एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती. साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो टेकन एज इक्वल. अगर ऐसा होएगा तो बी एफ इज़ इक्वल्स टू एफ इंटू सी. फॉलो कर गए? बी एफ इज़ इक्वल्स टू एफ इंटू सी. नाउ इन रे डायग्राम्स में आप B पॉइंट को P से बहुत फार दिखा रहे हो, है ना, बट एक्चुअली दिस B पॉइंट इज़ वेरी नियर टू P, सो दैट वी आर यूजिंग हेयर वन एजम्पशन कि BF इज़ इक्वल्स टू F इंटू P. अगर ये B पॉइंट बहुत पास आ जाए, यहाँ पे आ जाए सपोज, तो आप इसको ऐसे ही मीट कराओगे, और पास आ जाए तो यहाँ चले जाओगे. सो BF इज़ इक्वल्स टू FP इफ़ वॉट B इज़ वेरी नियर टू P. नाउ यहाँ पे हमने क्या लिखा? ए बी पैरेलल टू पी सी, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू आई, और आई और आर इक्वल हैं, देयरफॉर आर इक्वल्स टू अल्फ़ा. सो सी एफ इज इक्वल टू एफ बी, दैट इज साइड अपोजिट टू आर इक्वल टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. फॉर अ मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, अगर मिरर का अपर्चर भी स्मॉल है देन एफ बी इज़ नियरली इक्वल टू एफ पी. वही अजम्पशन है, बी इज़ वेरी नियर टू पी. सो उसके लिए अजम्पशन लिखनी कैसे? फॉर अ मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर, सो एफ बी इज़ नियरली इक्वल टू एफ पी, राइट. सो अब आपके पास क्या रिलेशन आया हुआ था? सी एफ इज़ इक्वल टू एफ बी, और एफ बी की जगह आपने एफ पी रखा, तो सी एफ इज़ इक्वल्स टू एफ पी. अब आप एक बारी डायग्राम को दोबारा देखो. सी टू पी को आप लिख सकते हो सी एफ प्लस एफ पी. टोटल इसको सी पी को लिख सकते हो सी एफ और एफ पी, एंड सी एफ इज़ इक्वल टू एफ पी. तो सी एफ की जगह पे भी एफ पी लिख दिया. आपके पास क्या आया? सी पी इज़ इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी, और बेटे इस सी एफ की जगह पे एफ पी लिख दिया. सी एफ इज़ नियरली इक्वल टू एफ पी, ये एफ लिखा हुआ है. एफ पी प्लस एफ पी, यू विल गेट 2FP. एंड सी टू पी सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस है R, फोकस का पोल से डिस्टेंस है F,
So f is equals to r by 2. You can write it like small f और कैपिटल F, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हो किसके लिए, फोकल लेंथ के लिए, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया स्मॉल f. तो स्मॉल f इज इक्वल्स टू r बाई 2. यहाँ पे मेंशन भी किया जा सकता है कि C से P का डिस्टेंस जो है वो r है और F से P का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ है. सो दिस इज द रिलेशन फॉर f is equals to r by 2. That is the relation between the focal length and the radius of curvature.